good morning, church. We all welcome you and bless you all that you have made a time to come and to honor His name. Before we go, I just want to welcome everybody on online and offline. We start our service at 10 o'clock sharp at Pramod Swarna Sadan. All of you who are there in Guwahati, you can come physically and attend church every Sunday at 10 o'clock. And rest of you who are unable to come, you can just attend on online service. Before we pray, I just want to read a verse from the Word of God from Zephaniah 3 verses 17. The Lord your God is with you, He says. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. So we hope that our Lord rejoices in us, and when He sings over us, it's a mighty thing, because when we sing and praise God, He is happy. And imagine if God does the same to us, what great blessing He will bring to our lives, in our family, in all the things that we plan to do. So let's lift up our hands and let's pray before we worship, Father. We come to your presence, O Holy Father, in Jesus' name, Lord Father. We bless your name as we come desperately seeking your kingdom, your face, your countenance, Lord Father. Shine upon us, like Father. Like how you shown your face to Moses, Lord Father. Bless us constantly and the same, Lord Father. We need your presence tremendously. Without your presence in our daily lives, without you in our midst, Lord Father, it's impossible for us to live, Lord Father. You take care of us so much like our own child, more than a mother, Lord, you love us, Lord Father. Bless us tremendously, Father, as we come to your presence, Lord Father. Your Holy Spirit, let it fall upon us. Let that tongue of fire fall upon us, Lord Father, as we worship your holy name, Lord Father. As we dedicate our lives to your kingdom, Lord Father, let your Holy Spirit fall upon each and every member of this church, Lord Father. As we seek only your kingdom, Lord Father, let your knowledge be upon us, Lord Father. Let your words, Lord Father, become reality in our lives, Lord Father. Speak to us, Lord Father. Father, as we come together in your presence, Lord Father, we just need you, Lord Father. As we praise you, we should look only onto you, Lord Father. Let everything in our lives be taken care. Our families, our issues, our whatever health problem we have, our financial problems which we have, our plans, our future, nothing will be concerned when your presence is there, Lord Father. Because we know, Lord Father, you're going to take care of it, Lord Father. Because you're mighty, Lord Father, mightier than every thought that we have, mightier than every desire that we have. Because you alone, Lord Father, you can take care of each and everything, Lord Father. Because you said in your words, Lord Father, when you seek your kingdom, Lord, rest should follow upon us, Lord Father. As we seek your kingdom, Lord Father, let your kingdom fall upon this world, let your kingdom fall upon each and every one, Lord Father. Let we seek you only, Lord Father, and you alone, Lord Father. Jesus, Almighty Father, let your blood cover us, Lord Father, cleanse us, make us holy, Lord Father. Even though we sin, O Lord, Almighty Father, but by your grace, by your sacrifice, by your atonement, Lord Father, we are worthy to come and worship your name, Lord Father. Without you, your sacrifice, Lord Jesus, my Father, we are not worthy to come, Lord, to presence, because we are filled with sins, Lord Father. But only through you, Jesus, mighty Father, we are again ask for a reconciliation, a redemption again, Lord Father. Fill us with your blood again. Baptize us with your Holy Spirit, Lord Father. Let your Holy Spirit, as you are with us, Lord Father, influence and intercede every worship that we do. Every prayer that we make should be interceded by your Holy Spirit, Lord Father. We dedicate every whole worship, the sermon, right from the beginning of the service till its ending, Lord Father. Let your presence be evident, Lord Father. Fill us up, Lord Father. Even though we are few in numbers, but we are great in your presence, Lord Father. Thank you so much for hearing our prayer. Dedicate the whole service to your mighty hand. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much. Let's look forward. And as we worship, let's lift up our hearts and let's come with a desperate heart and worship and seek His kingdom as we surrender into His glory. Amen. हालेलुया, हालेलुया। आइए कलीसिया, आज हम मिलकर के हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे।
उसके नाम को वो महिमा देंगे, वो आदर देंगे जिसके वो योग्य है। आइए कलीसिया, हम अपने अपने हाथों को उठाएंगे, अपने अपने मुंह को खोलेंगे और हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना पूरे सच्चाई से और आत्मा से भरकर करेंगे। आज जो हम गीत गाने वाले हैं वो एक नेपाली गीत है जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और वो गीत के बोल के अनुसार कहा जाता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी में लेकर आते हैं। इससे पहले कि हम आराधना में चले, आइए कलीसिया हम एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय का 1 वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So कलीसिया, आज सवेरे हम जहाँ कहीं भी हो और जैसे हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, आइए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को, अपने जीवन को हम एक जीवित बलिदान के जैसे परमेश्वर को अर्पण करें। आइए अपने अपने मुंह को खोलेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा बा शिखरा रा रा रा, ओ रबरा बरा का बा शिखरा रा 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 रा, ओ शानदार रा 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 रा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु। ओ रबा बाबा 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 शिखरा रा रा। प्रभु, अपने आप को हम अर्पित करते हैं आपको। ओ प्रभु, हमें ग्रहण योग्य बना परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप हमारा सहारा हो प्रभु, प्रभु आप ही हो प्रभु, जिसकी प्रभु हमें जीने का जो हमें मकसद देता है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस। ओ रबा बाबा बा शिखरा रा रा रा। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड। धन्यवाद यीशु। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरी ज्योति। अंधकार में भी ज्योति दे, अंधकार में भी ज्योति दे। प्रभु तेरी मैं महिमा करूं, प्रभु तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर के पवित्र वेदी चढ़ाऊं मैं अपने जीवन को, परमेश्वर के पवित्र वेदी में चढ़ाऊं मैं अपने जीवन को। मेरा सारा, मेरा सारा हृदय से, मेरा सारा हृदय से यीशु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आइए कलीसिया, अपने अपने हाथों को उठाएंगे, हम अपने भेंट को, अपने बलिदान के भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में। पूजा करूं मेरे ये दो हाथ, धन्यवाद के साथ भेंट ये लाऊं। पूजा करूं मेरे ये दो हाथ, धन्यवाद के साथ भेंट ये लाऊं। मेरा सहारा
परमेश्वर के पवित्र वेदी में चढ़ाऊं मैं अपने जीवन को। आइए अपने जीवन को चढ़ाए हम परमेश्वर के पवित्र वेदी में चढ़ाऊं मैं अपने जीवन को। मेरा सारा हृदय से, मेरा सारा हृदय से यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो, यीशु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी प्रशंसा हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया यीशु, ओ तेरी आराधना जय जयकार हो। हालेलुया ओ यीशु, तेरी आराधना हो। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु आपके समान कहीं भी नहीं है और कोई भी नहीं है। आप हमारे जीवित परमेश्वर हो, अंधकार से ज्योति में हमें लाने वाले प्रभु। हम जब खोए हुए थे प्रभु, आपने हमें ढूंढा है परमेश्वर। हम पाप में पड़े हुए थे प्रभु, आपने हमें बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Yes, Lord Jesus, we celebrate you, God, for you are good. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा आइए कलीसिया आप प्रभु को कहेंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। उसके नाम को उठाएंगे, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये सभी। यीशु मसीह, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए एक बार फिर से अपने प्रभु को कहेंगे हम, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है कोई नहीं। Yes, Lord
प्रभु आपके समान कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि हम आपकी आराधना करते हैं, एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके समान कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes, Lord Jesus, for there is salvation in your name, O God. There is deliverance in your name, O Lord. There is forgiveness of sin. There is mercy, O God. Anything we ask in your name will be there done for us. यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। Yes, Lord Jesus, your name is greatly to be praised, higher than any other name. Oh, Jesus. हालेलुया, प्रभु तेरे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आइए कलीसिया, हम एक बार फिर से इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। और जब हम इस गीत को गाते हैं, आइए अपने जिंदगी को हम समर्पित करें और उस बहुतायत के जीवन को हम पाने के लिए अपने आप को एक बार फिर उसके हाथ में सौंप दें। आइए कलीसिया, हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
को हम पुकारे, आइए उसके नाम को अपने मुंह से हम पुकारे। यीशु नाम का मतलब है कि प्रभु हमें बचाता है। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, यू सेव अस गॉड। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु तेरा नाम हमारे होठों के लिए मधु के जैसे है प्रभु। ओ इतना सुंदर नाम, इतना मीठा नाम। तेरे नाम को प्रभु जब हम पुकारते हैं तो प्रभु शैतान कांपता है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती है प्रभु। तेरे नाम से हर वो परमेश्वर का वायदा हाँ और आमीन है। ओ इतना मधुर नाम है। धन्यवाद देते हैं ओ यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को पुकारते हैं यीशु, यीशु ओ हमारा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। Yes Lord Jesus, oh we adore you, we exalt you God. There is none like you Jesus. We thank you God for who you are. Oh Lord, we celebrate you today oh God, for you are so big amidst us oh Lord. प्रभु आप इतने महान हैं हमारे बीच में प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे बीच में होने पाए प्रभु। आप बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए प्रभु। अपने आप को हम एक बार फिर आपको समर्पित करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर टू अस, फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन आवर लाइव्स ओ लॉर्ड, एंड फॉर एवरीथिंग ओ लॉर्ड दैट यू आर अबाउट टू डू। Oh, we give you the glory, Lord, that is due unto you. Be exalted, God, in and amidst us, Lord. Take complete control. ये समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारा अगुवाई करें। Yes, Lord Jesus, take complete control. In Jesus' name we ask and pray. Amen. So praise the Lord, church. We want to thank God and praise God for this wonderful day that God has given to us. Once again, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज का दिन चाहे आप ऑनलाइन में हो, चाहे आप फिजिकली ऑफलाइन में हमारा साथ हो, परमेश्वर जहाँ में भी हो हम उसका उपस्थिति है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित होगा वहाँ मैं होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है कि अपने लोग आराधना के लिए जब एकत्रित होता है तो वहाँ उसका उपस्थिति रहता है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारा आराधना को स्वीकारा है, वो उसको प्रसन्न हुआ है। सो आए हम उसके साथ साथ हम आज सुबह परमेश्वर का वचन, जीवित वचन में हम लोग जाएंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू वंस अगेन, वी आर इन द सीरीज। हम लोग अपना सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है द ब्लेसेड लाइफ, जैसे स्क्रीन में दिखा रहा है द ब्लेसेड लाइफ, आशीषित जीवन को लेकर लगभग 2 महीना तो चल चुका है, ख़त्म हो चुका है। हमने सबसे पहले शुरू किया था मत्ती 5 से लेकर ये वचन को हम लोग चर्चा कर रहा है। खास करके मत्ती 5, 6, 7 जब पढ़ेगा तो वी कॉल इट समन ऑन द माउंट, पहाड़ी का उपदेश करके भी कहा जाता है। और उसी से हम लोग पहले जो बात जो था हमने धन्य वचन बी एटीट्यूड से लेकर हमने बात किए थे। लगभग 9 मैसेजेस हमने इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करके बात किए थे। सो अलग अलग बात जो मसीह जीवन या तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग चलने से क्या क्या चरित्र हमारे जीवन में होना चाहिए, ये बात भी बात किए थे। उसके बाद धन्य वचन के बाद नमक
और ज्योति बनना कैसे होता है उसके बारे में हमने बात किया है। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने ये बात भी किया था, यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं वो व्यवस्था को लोप करने के लिए या तो ख़त्म करने के लिए नहीं आया, लेकिन हम उसको पूरा करने के लिए आया करके हमने बात किया था। और हमने इस बात को भी जाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये परमेश्वर का व्यवस्था को कैसे पूरा किया है। How did he fulfill the law? One of the way he fulfilled the law was by revealing the true meaning, the truth that is behind it. मतलब जिस वचन को हमने पढ़ा है, जो पुराना नियम को लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत बात कोट किया है, इन बातों को यीशु मसीह ने वो सच्चाई को प्रकाश करके उसी प्रकाशन के साथ उसने जो व्यवस्था जो है उसको पूरा किया था। यीशु मसीह यहाँ में भी आज का दिन जो हम लोग बात करने जा रहा है वो भी यो व्यवस्था को लेकर फिर से बात करेगा, वो है हत्या, मर्डर के बारे में। ठीक है, ही इज गोइंग टू रिवील द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ अगेंस्ट द मर्डर। ठीक है ना, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 to 26 हम पढ़ेंगे हिंदी में। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई चुका न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख में हम अपना आप को तैयार करेंगे कि उसके वचन हम सुन सके आज सुबह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते आपका जीवित वचन के लिए जो हमारे लिए है, और आपका वचन हमसे प्रभु अगुवाई करते हैं और हमारे जीवन को बनाता है। और प्रभु हम इस समय में आपके वचन से सुनने के लिए अपना आप को तैयार करते हैं। हमारा हृदय को साफ करें प्रभु जी, हमारा कानों को साफ करें, आंखें को साफ करें, ताकि हम आज सुबह आपका वचन से सुन सके, देख सके और समझ सके जो बात आप हमसे आज सुबह सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है और बतलाना चाहता है। हर एक डिस्ट्रैक्शन को हम इस जगह से दूर करता है। आपका उपस्थिति में हम बैठ कर आपका वचन में ध्यान रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। यीशु आपका पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे और हमें सिखाइए, यीशु के नाम से आमीन। नो यहाँ में यीशु मसीह बार बार लगभग 6 बार इस्तेमाल किया है ये शब्द को कि तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था। ठीक है, तुम सुन सके हो कि ये कहा गया था, मतलब यीशु मसीह वो व्यवस्था में जो लिखा गया बातों को रिफर कर रहा है। और उसके बाद उसने एक बात कहा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। ठीक है ना, तुम सुन चुके हो तो ये कह चुका था, पर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या यीशु मसीह व्यवस्था पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ में बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो हम उसका मतलब निकालने का ज़रूरत है। यहाँ में 2 बात को हम लोग को जानने ज़रूरत है कि यीशु मसीह
क्या को एड्रेस कर रहा है, दो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। सबसे पहले कि उन दिनों में, उस समय में जो लोगों को पुराने नियम का व्यवस्था जो है बहुत बताया जाता है, लेकिन वो लोगों को ठीक से सिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना। फारिसी और जो व्यवस्था का जो शिक्षक लोग जो थे, अपना शिक्षा को व्यवस्था के साथ, मूसा का व्यवस्था के साथ मिक्स करके, मिलाप करके अपना फ़ायदा के लिए भी वो इस्तेमाल करता था, ठीक। वो नंबर वन, वो ठीक से सिखाया नहीं जाता था। और दूसरा बात ये है कि ये जो फरीसी और ये टीचर्स ऑफ द लॉ लोग जो था, क्या था कि वो लोग सिर्फ ये जो व्यवस्था जो है वो एक्सटर्नल, जो वो बाहरी कार्य के लिए वो लोग सोचता था। मतलब यीशु मसीह यहाँ गंभीरता से कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब ये बात कह रहा है कि जो व्यवस्था जो है वो सच में व्यवस्था क्या है, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। सो हम आज सुबह थोड़ा देखते हैं यीशु मसीह का अनुसार जो हत्या, मर्डर जो है वो क्या है, उसका मीनिंग, ठीक है, ट्रू मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि जो हत्या करने का आज्ञा, ठीक है, हत्या का खिलाफ में, विरोध में जो आज्ञा दिया हुआ हम पुराना नियम में देखता है, वो 10 आज्ञा का 6 नंबर में वहाँ में बताया गया है कि डू नॉट मर्डर, ठीक है ना, हम हत्या नहीं करना है। वो हम लोग निर्गमन 20 में देख सकता है, 20 का 13 में, ठीक है। एक्सोडस 20:30 में भी हम देखता है, और ड्यूटरोनोमी 5:17 में देखता है। सो देयर वाज नो डाउट यहाँ में यीशु के सुनने वाले लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं था कि हत्या नहीं करना है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हत्या नहीं करना है ये सुनने के, क्योंकि हत्या करना गलत है, ठीक है ना, किसी का जान लेना गलत है। हम लोग के लिए ये बात सुनने नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर एग्री टू दिस, नो, वी कैन इजीली एग्री टू दिस बिकॉज इट इज़ रॉन्ग टू टेक समवन्स लाइफ, नो, एंड वी थैंक गॉड दैट नो द लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम समवन टेकिंग आवर लाइफ, नो, ये हम एग्री करता है। लेकिन यहाँ में यीशु मसीह नए कॉन्सेप्ट बता देता है, ठीक है ना। यीशु मसीह नए कॉन्सेप्ट बता देता है, एंगर कैन ऑल्सो बी एवल, मतलब जो क्रोध बोलता है ना, गुस्सा, क्रोध है वो भी बुरा हो सकता है। क्रोध है वो जो हत्या के समान में वो बताया जा रहा है। और आज हमारे लिए भी थोड़ा हैरान की बात है कि यीशु मसीह बोल रहा है कि सिर्फ हम लोग ने किसी को मार पीट करके या किसी को गोली मार के हत्या करना सिर्फ वो नहीं, लेकिन हम अपना मुंह से भी, अपना सोच से भी, अपना वो जो वचन से भी किसी को हत्या कर सकता है, यीशु मसीह कह रहा है। सो हाउ कैन एंगर बी कंसिडर एज सिंफुल एज मर्डर? यीशु मसीह यहाँ में कह रहा है कि just as murder is sinful because it is physical violation of someone created in the image of God, so also insulting is sinful because it is verbal violation. तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि परमेश्वर का जो स्वरूप में बनाए हुए इंसान को हिंसा के द्वारा जो हत्या करते हैं तो अब पाप बन जाता है। ठीक वैसे जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हम इंसान, मनुष्य को हम गलत बातों से और वो गलत गाली निकाल कर हम जब कहते हैं तो हम वो व्यक्ति को क्या हो रहा है, हिंसा, जो हमारा मौखिक के द्वारा हिंसा कर रहा है और उसको हत्या कर रहा है, वही बोल रहा है। सो व्हाट इज बिहाइंड द एक्ट? ठीक है, यीशु मसीह यहाँ में जो उसी कार्य का जो पीछे क्या है उसको बता दे रहा है। वो पीछे क्या है? पीछे है कि इट इज द एटीट्यूड, हमारा रवैया। सो ये जीसस इज टेलिंग अस 3 एग्जाम्पल इन वर्स 22। जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा।
सो यहाँ 3 बार कह रहा है यीशु मसीह, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, क्या वो कचारी, मतलब जो ज्यूस यहूदी का जो कोड जो है उसके लिए बोल रहा है, कचारी में दान के योग्य है बोल रहा है। दूसरा बात, जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, ठीक है ना, निकम्मा क्या है, वो महासभा में दान के योग्य है। और जो कोई अरे मूर्ख जो कहेगा अपने भाई को ना, किसी को भी मूर्ख कहेगा, वो क्या है, आग के दंड के योग्य कहला जाएगा। 3 बार बोल रहा है, ठीक है ना। सो वाई इज एंगर रूट कॉज, क्योंकि हम जानता है कि जब हम किसी के ऊपर क्रोध या तो गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है, लाइक वी इंटेंड टू हार्म दैट पर्सन, ठीक है ना। हम किसी को जब गुस्सा करते हैं तो हम वो व्यक्ति के ऊपर चोट या तो नुकसान पहुंचाना कोशिश करता है कि नहीं, जब हम गुस्सा करते हैं तो इसीलिए यहाँ में एटीट्यूड के बारे में बोल रहा है। इसीलिए हम लोग जब किसी के ऊपर जब बहुत गुस्सा हो जाता है तो हम लोग ये भी सोचता है कि काश वो मर जाए, ठीक है ना, ये भी हम लोग सोचता है ना। वी विश समटाइम नो, लाइक आई विश ही इज डेड, काश मैं उसका गला पकड़ के दबा सकूँ। नहीं, हम गुस्सा होने से यही आता है ना। बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 3:15 में बाइबल साहब कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। जो कोई अपने भाई से क्या हुआ है, बैर रखता है वह हत्यारा है, बोल रहा है, हत्यारा है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या होता है, एनीवन हु हेट्स अ ब्रदर और सिस्टर इज अ मर्डरर, बोल रहा है। बाइबल क्लियर बोलता है, एंड यू नो दैट नो मर्डरर हैज इटर्नल लाइफ रिसाइडिंग इन हिम। बाइबल वेरी क्लियर। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर एंगर, ठीक है। हम लोग वो क्रोध के बारे में थोड़ा सोचने का बहुत ज़रूरत है। हम किसी के ऊपर, हम किसी को ये पुकारे कि हे मूर्ख, हे निकम्मक, हे नालायक, ठीक है। हम जब किसी को गली या किसी को नाम, ठीक है, नेम कॉलिंग तो जब बोलते हैं तो वी आर अटैकिंग देयर वैल्यू। और हम जब गुस्सा होता है तो किसी को नुकसान पहुंचाना कोशिश करता है। इसीलिए यीशु मसीह ये कर रहा है कि वो स्रोत है, गुस्सा या तो क्रोध जो है वो हत्या का स्रोत है। क्रोध जो है हत्या का कली है, और परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि इससे कली में से उसको दबा दे, मतलब उसको रोक दे, ठीक है, ये बोल रहा है, क्योंकि वो स्रोत है, उसी के द्वारा ये हत्या भी कर सकता है। व्हाट अबाउट जीसस, यहाँ हम लोग बोल रहा है क्रोध 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 करना क्या है, वो हत्यारे है बोल रहा है। तो व्हाट अबाउट यीशु मसीह, डिड जीसस एंगर, डिड जीसस कॉल पीपल फूल? यस ही डिड। हम बाइबल में देखता है कि यीशु मसीह क्रोध हुआ है, मतलब गुस्सा हुआ है, और हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो कोई लोग ये बोल सकता है दैट इज अ राइचियस एंगर, ठीक है ना। Now you might say Jesus had righteous anger, so we can have a righteous anger, ठीक है। ये बात हम लोग बोल सकते हैं, हाँ सही बात है, वो he had righteous anger, लेकिन ये बात को हम लोग को जानना है कि we are not Jesus, ठीक है। कल से हम लोग को इस बात को जानना है कि हम में से कोई भी यीशु मसीह नहीं है। So when we talk about righteous anger, we must be careful what really is righteous anger, because our anger is very often selfish। हमारा जो क्रोध जो है कई बार हम लोग सेल्फिश हो जाता है, और किसी को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हम सही है इसलिए हम लोग गुस्सा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ में मत्ती 5 में जो गुस्सा या क्रोध जो सब इस्तेमाल कर रहा है वो यीशु मसीह का क्रोध को लेकर डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बाइबल कहता है, ठीक है। ऑल्दो इट डिस्क्राइब द wrath against the sin, God's wrath against the sin, ठीक है। हम देखेंगे मार्कुस 3:5 में यीशु मसीह क्या कहता है, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु मसीह यहाँ में फरीसी को ते गुस्सा जो हो रहा है वो ऐसा नहीं कि वो लोग को शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ में यीशु मसीह क्यों गुस्सा हो रहा है, तो वो लोग का पाप को लेकर, ठीक है ना, वो लोग का पाप को लेकर
ये वो लोग का जिद्दी मन, जिद्दी जो हृदय जो है कि ये व्यक्ति चंगाई नहीं पाए, ठीक है, ना पाए, वो लोग का जो हृदय, वो लोग को जिद्दी जो, वो लोग का पाप जो उसको देखकर वो गुस्सा हो रहा है, बिकॉज ही लुक अराउंड, ठीक है ना, ही वॉज एंगर बिकॉज ऑफ देयर स्टबबोर्न हार्ट्स। तो वो लोग का जो जिद्दी बोलेगा ना, जिद्दी का हृदय को लेकर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हो रहा था। और सिर्फ वो नहीं है, मत्ती 21 का 12 से 23 में भी वहाँ में पढ़ेगा तो हम जानते हैं ये इंसिडेंट को, क्या लिखा है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के मेज़ें और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। It was same here. Jesus was angry because the house of God was used in dishonest way. मतलब it was supposed to be the house of prayer. ये घर प्रार्थना का घर बनना था, लेकिन वो लोग डाकुओं का खो बना दिए थे, इसीलिए वो इस बात को लेकर गुस्सा हो रहे थे। सिर्फ वो नहीं है, मत्ती 23 का 16 से 17 में भी वहाँ में यीशु मसीह क्या कहते हैं वो लोग को, हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। तो यहाँ में भी यीशु मसीह का जो क्रोध, जो गुस्सा, जो ऐसा नहीं कि ये लोग पर्सनली व्यक्तिगत में वो लोग को जो चोट उस लोग ने, फरीसियों ने उसको चोट पहुँचाया तो उस कारण नाराज़ होकर गुस्सा हो रहा, नहीं, वो नहीं है। ये क्यों गुस्सा हो रहा है, तो वे वास्तव में मूर्ख थे और उनके पाप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था, इसीलिए वो गुस्सा से वो लोग को मूर्ख पुकार रहा था। क्रोध हमेशा पाप नहीं है। यहाँ से हम लोग जानता है कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर राइचियस एंगर, ठीक है, वो धर्मी क्रोध के लिए हमेशा जगह रहता है, जैसे कि इफिसियों 4 का 26 कहता है, इफिसियन 4:26 से, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। प्रॉब्लम यहाँ में हम लोग का यही है कि हम लोग कहता तो है कि ये राइचियस एंगर है, मैं जो गुस्सा हो रहा, मैं जो मेरे ऊपर जो क्रोध है वो क्या है, वो धर्मी क्रोध है, लेकिन हम लोग ये बाइबल के अनुसार नहीं जाता है, हम लोग वो सूरज को डूबने अलाउ कर देता है, ठीक है ना, वी कीप इन आवर हार्ट, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग गुस्सा होकर हम खुद के ऊपर रख देता है। द राइचियस एंगर डिजायर गुड फॉर अदर पीपल, मतलब ये धर्मी जो क्रोध है वो क्या हो जाता है कि दूसरों का भलाई के लिए हमेशा चाहत करेगा, ठीक है ना, चाहत करेगा, और कभी भी वो सेल्फिश नहीं होगा, खुद के लिए नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो हम क्रोध कर रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का भलाई के लिए सोच का हम लोग क्रोध करता है, ठीक है ना, वो राइचियस हो जाता है। और वी विल नेवर हार्म दैट पर्सन फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो सिंफुल एंगर जो है, पाप से भरे हुआ जो क्रोध जो क्या होता है, वेरी ऑफन वी हर्ट पीपल, लोगों को हम लोग चोट पहुंचा देता है, ठीक है, और वो हमेशा स्वार्थी हो जाता है। एंगर मतलब यीशु मसीह क्रोध को रोक लगा नहीं रहा है, लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, जब हम गुस्सा होता है तो हमारा रवैया कैसा है और हमारा जो सोच जो है वो किस दिशा पर है और उस व्यक्ति के लिए क्या सोच का हम लोग क्रोध कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। यीशु मसीह क्रोध होने से भी बदला नहीं लेता है, ठीक है। यीशु मसीह, हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:23 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। सो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह पाप के ऊपर क्रोध, गुस्सा होता था, लेकिन पर्सनली वो लोग को बदला के तौर में वो कभी वो नहीं किया है।
सिर्फ यह नहीं है, हम लोग क्रूस में देख सकता है, क्रूस में मरते मरते यीशु मसीह ये प्रार्थना किया कि उसको जो इंसल्ट करने वाला लोगों को, उसको जो अपमान करने लोगों को के लिए वो प्रार्थना करता था कि पिता इन्हें क्षमा करे, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्डर अकॉर्डिंग टू जीसस हियर? यीशु मसीह का अनुसार यहाँ में जो हत्या जो क्या है, तो ये है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो क्या होता है, कचहरी में दंड योग्य है, और अपने भाई को निकम्मा जो कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य कहलाएगा, और जो कोई ये कहेगा कि अरे मूर्ख, ठीक है, तो वह नरक की आग के दंड योग्य है, मतलब कि वो हत्या के समान है बोल रहा है। सो इसीलिए यीशु मसीह वर्स 23-24 में, ठीक है, जाकर ये कहता है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, मतलब देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन जो है वो बता रहा है। मेल मिलाप का महत्वपूर्ण को यीशु मसीह इसीलिए वचन 23 और 24 में कह रहा है। हम पढ़ेंगे, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ यीशु मसीह मेल मिलाप का जो इम्पोर्टेंस वह फिर से दे रहा है, ठीक है। और ये बात हम लोग धन्य वचन में भी हम लोग टच कर चुका है, हम लोग इस बात को चर्चा भी कर चुका है। फिर भी हमें यीशु मसीह बता रहा है कि जो रिकॉन्सिलिएशन मेल मिलाप जो है परमेश्वर से आराधना करने से पहले आता है करके ये एम्फसाइज कर रहा है। यीशु मसीह ये मेल मिलाप को इतना महत्वपूर्ण दे रहा है कि हमें रोकने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। जाते जाते, ठीक है, परमेश्वर के मंदिर में जाते जाते अगर आपको वो स्मरण किया है तो आप वहाँ रोक जाओ बोल रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम जानते हैं इसको इम्प्लीकेशन में लाने के बारे में आप सोचिए, ठीक है। परमेश्वर हमारा आराधना का योग्य है, उसके जैसा और कोई नहीं है, उसको आराधना करने के लिए हम लोग को बनाया है। फिर भी यीशु मसीह यहाँ में बोल रहा है कि तू होल, मतलब रोक लगाने के लिए बोल रहा है। क्यों, क्या क्या के लिए रोक लगा रहा है? ताकि हम मेल मिलाप करें पहले, ठीक है। बोल रहा है आप वो लेकर आए, अगर स्मरण हुआ है तो छोड़ दो, छोड़ के जाओ, जाकर पहले मेल मिलाप करो, उसके बाद वापस आके हमको आराधना करो, या तो वो आपका बेज हो उसको अर्पण करो बोल रहा है। सो हम बाइबल पढ़ेंगे, पुराना नियम ये कहता है यिर्मयाह 7:9-11, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। उसका मतलब यही है कि नो इट wasn't enough simply to bring the sacrifice, but our heart must be right with God before we bring our sacrifice. हम जानते हैं अभी हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस नहीं लाता है, लेकिन we bring a sacrifice of praise and worship to Him. हम लोग संडे को मान लीजिए आराधना करने के लिए एक कलीसिया आता है और हम लोग का मन में कोई है जो हम माफ़ नहीं करता है, या तो आपने किसी के प्रति गलत किया है, या तो किसी ने आपको प्रति गलत किया। यहाँ में बाइबल नहीं बोलता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको स्मरण हुआ है तो आप उसको सही करना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। सो हमारा हृदय जो है परमेश्वर के साथ सही होना पहले वो ज़रूरत है। बिफोर यू कम टू वर्शिप गॉड, आवर हार्ट मस्ट बी राइट विद गॉड फर्स्ट, and as well as with our
brothers and sisters, then only we can worship God. That's what he said. Is it God saying reconciliation is more important than worship? No, rather it is reconciliation is necessary in order to worship God. यही बोल रहा है। वर्शिप सही से, आराधना सही से करना है तो मेल मिलाप बहुत ज़रूरत, ये बात कह रहा है। हम बहुत लोगों को जानता है कि कलीसिया में, ठीक है, वो परिवार के बीच में, माँ बाप और बच्चे के बीच में, वो बीच में दीवार है, फिर भी साथ में आकर आराधना करते हैं, उसके बाद फिर से वापस चला जाता है। हम जानते हैं दोस्त और दोस्त के बीच में, या तो भाई और भाई के बीच में वो दीवार है, लेकिन वो ठीक नहीं करके लोग परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करके वापस चला जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कभी भी, ठीक है, आपका आराधना वो रूफ के ऊपर भी पार होकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि आप वहाँ में छोड़ दो और वापस जाके पहले मेक राइट विद दैट पर्सन एंड कम बैक टू मी। दैट्स व्हाट ही सेड। ठीक है, हम लोग साम्स 66:18 पढ़ेंगे। क्यों ये मेल मिलाप ज़रूरत है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। So if you want to talk with God, ठीक है, first you must talk to your brothers and sisters. That's what no I want to say. ठीक है, you can't talk with God if you will not talk with your brothers and sisters. ठीक है, हम अपना भाई बहन के साथ वो बैर रख कर हम परमेश्वर से बात करेगा, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ है, पहले आप सही करो, उसके बाद आप मेरे साथ आना, तब आपको हम बात करेंगे और आपको बात को हम सुनेंगे। ये बात यीशु मसीह कह रहा है। अगर हम भाई और भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में वो दीवार रखेगा तो परमेश्वर और हमारा बीच में भी वो दीवार खड़ा हो जाएंगे और कभी भी हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। पहला यूहन्ना 4:20-21 में कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर को प्रेम करने का तरीका, वन ऑफ द वे वी लव गॉड इज बाय व्हाट? बाय लविंग ईच अदर। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकता है कि हाँ मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूँ बोल के अपना भाई के साथ वो एनमिटी मतलब दुश्मन, ठीक है, और बात नहीं है और हम उसका चेहरा नहीं देख पाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम सोचेगा तो बहुत गुस्सा आ जाता है, मेरा खून गर्म हो जाता है, ये बात होता है। तो उस व्यक्ति के बारे में हम जब सोचता है तो उसका गला पकड़ने के लिए मन करता है, ठीक है। उसके बाद प्रभु को बोलते हैं, हाँ प्रभु आपको हम प्रेम करता है, आपको हम आराधना करते हैं, मेरा दिल से हम आराधना करते हैं, ठीक है, मेरा दिल साफ है प्रभु, मेरा दिल को टटोले बोलता है। लेकिन उसके बाद चर्च से गया और वो भाई को देखेगा तो इतना गुस्सा हो गया कि हमारा खून जो है गर्म हो जाता है, उसके बाद वो परमेश्वर का प्रेम को भूल जाता है। ये सही नहीं होगा। इसीलिए ये बोल रहा है कि मनुष्य के साथ मेल मिलाप जो हारमोनी में होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट सीक आउट after reconciliation. If we have anybody that we need to forgive, if we have anybody that we need to ask forgiveness, कि यही बाइबल कह रहा है। जीसस यह हमें कह रहा है कि आपका वेद को छोड़ कर चला जाओ वापस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि डोंट फॉरगेट टू कम बैक, ठीक है। आप जाकर आप मेल मिलाप तो कर लिया, इसलिए चले आप अपना रास्ता, जब मैं अपना रास्ता जाएंगे हम भूल जाना नहीं, हम लोग मेल मिलाप करने के बाद फिर से वापस आना है और उसको आराधना करना है, ठीक है ना। टू वर्शिप गॉड फ्रॉम आवर हार्ट वी मस्ट मेक श्योर दैट आवर हार्ट इज प्योर बिफोर जीसस। हम परमेश्वर को सच्चा हृदय से आराधना करना है तो हम इस बात को भूलना नहीं है कि परमेश्वर का यीशु मसीह के सामने में हमारा हृदय को शुद्ध होना है, ठीक है। इस बात को कह रहा है। आइए हम वर्स 25 to 26, 5 का 25 और 24 पढ़ेंगे अंत में।
जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई चुका न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। जब तक तू पाई पाई चुका न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। ये हमारे लिए एक वार्निंग है, यहाँ में एक चेतावनी हमें दे रहा है। रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप नहीं करने का जो वार्निंग यहाँ में एक साफ सा बता रहा है। ठीक, यीशु मसीह यहाँ में नहीं कह रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, बस ये साफ बोल रहा है कि हमें करना है। अगर हम पापी का बारे में बात कर रहे हैं तो हम सब परमेश्वर के सामने में गलत है। ठीक, इसीलिए हम मनुष्य के सामने भी परमेश्वर के सामने में भी मेल मिलाप करना है। वी आर अनराइचियस विदाउट Jesus, and we all need His forgiveness. We all need to come back to God for His righteousness. ठीक है ना? इसीलिए हम यहाँ यीशु मसीह यहाँ में कौन सही है कौन गलत है के बात नहीं बोल रहा है। सो यहाँ जो वार्निंग जो था क्या था, पाई पाई चुका न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। इसका मतलब क्या है? हम जो रिकॉन्सिलिएशन, जो मेल मिलाप है कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो यहाँ में अर्जेंसी के लिए बोल रहा है हम लोग को। अर्जेंसी मतलब बहुत जल्दी देर नहीं करने के लिए यहाँ में हमें बता रहा है। ठीक है ना? यहाँ में जो सिद्धांत जो है वो है नॉट टू गेट डिले, डू नॉट डिले। ठीक है, हम लोग देरी नहीं रखने के लिए बोल रहा है कि जैसे कि हमने पढ़ा इफिसियों 4:24 में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। बाइबल यहाँ में बता रहे क्रोध तो करो, लेकिन सूरज को डूबना नहीं देना है। हम लोग को तुरंत मेल मिलाप करना है, देर नहीं रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, व्हेन यू होल्ड ऑन टू एंगर, यू नॉट ओनली कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम गॉड, बट यू ओपन योरसेल्फ for Satan to come into your life to take control of you also ना। हम लोग सिर्फ परमेश्वर से अलग नहीं हो रहा है, हम लोगों से भी अलग हो रहा है और शैतान के लिए हम लोग रास्ता बना रहा है कि मेरा जीवन में वो अधिकार ले ले। ठीक है, और जितना हम डिले करेगा उतना महंगाई पड़ेगा। पाई पाई चुका ना दे तब तक वहाँ से छूटना नहीं पाएगा बोल रहा है। जीसस इज टॉकिंग अबाउट द अर्थली जजमेंट। यहाँ में जो यहूदी का जो न्यायालय के लिए यीशु मसीह बात कर रहा है, लेकिन वी मस्ट ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इटर्नल जजमेंट। ठीक है, यीशु मसीह ये हमें भी ये बता रहा है और यहाँ से हम लोग कुछ एप्लीकेशन निकल सकता है कि हमें परमेश्वर के साथ भी समय रहते रहते बिना देरी करते हुए परमेश्वर के साथ भी हम लोग को मेल मिलाप करना चाहिए। नहीं तो क्या होता, आपको नरक में फेंकने के बाद आप जितना भी करो, आपके पास जितना भी पैसा है दे कर आप चुकाने का कोशिश करो, आप चुका नहीं पाएगा। सो वी मस्ट मेक फ्रेंड्स विद पीपल एज वेल एज वी मस्ट मेक फ्रेंड्स विद गॉड। सो बॉटम लाइन क्या है अंत में आज का वचन, ठीक है, हमें जैसे कह रहा है कि जो क्रोध जो है वो हत्या के साथ प्रभु यीशु मसीह मिलाकर बात कर रहा है। तो हमको यहाँ से क्या सीखना है हमारा जीवन, हमारा मसीह जीवन के लिए, कि वी शुड डील विद आवर एंगर, वी शुड डील विद आवर एंगर बिफोर गॉड डील्स विद आवर एंगर। परमेश्वर हमें वो डील करने से पहले हम खुद का क्रोध, ठीक है, का प्रॉब्लम को हम लोग को डील कर लेना चाहिए। ये जो क्रोध जो है मनुष्य या दूसरों के साथ हमें अलग करते हैं और परमेश्वर के साथ भी हमें वो बैर रखता है ना, अलग कर देते हैं। सो हमारे जीवन में वो पाप, चाहे क्रोध का पाप हो चाहे वो हत्या का पाप हो, अगर है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए हम लोग को पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आकर वो मेल मिलाप कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अनरिजॉल्व एंगर आर लाइक
our spiritual cancer in our heart, जो आध्यात्मिक का जो बीमारी जैसे हमारे हृदय के लिए, इसीलिए हम लोग को रिजॉल्व करना परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ, ठीक है ना। और हम इस बात को भी पूछ सकता है कि क्या मेरे जीवन में वो गुस्सा, क्रोध का प्रॉब्लम है, डू आई हैव एंगर प्रॉब्लम इन माई लाइफ, ठीक है ना। इन बातों को भी हम लोग को लेट अस सर्च आवरसेल्फ, लेट अस सर्च इन आवर हार्ट, ठीक है ना। जैसे आज बोल रहा है निकम्मा, ठीक है, मूर्ख, नालायक, ये सब बात जो है ना हम लोग बिना सोचते हुए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हमारा बच्चे के ऊपर भी हम लोग इस्तेमाल कर देता है। लेकिन बाइबल साफ कहता है कि हम इन सब बातों को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। उधर हत्या जो है, मर्डर जो है, सिर्फ वो फिजिकली जाकर हिंसा इस्तेमाल करके लोगों को मार देना सिर्फ नहीं है, लेकिन हम वर्बली भी किसी को चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए हम लोग को इस बात को भी पूछना है कि डू आई हैव दिस एंगर प्रॉब्लम इन माई लाइफ दैट आई नीड टू डील विद, ठीक है। मेरा जीवन में क्या ये क्रोध या गुस्सा का प्रॉब्लम है जो हमको डील करने का ज़रूरत है। Did God remind you anybody that you need to be reconciled with? जब ये वचन आप सुन रहा था तब क्या परमेश्वर आपको कुछ रिमाइंड किया है? क्या परमेश्वर किसी का चेहरा लाया है जो आपको परमेश्वर के साथ और वो पर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप कर लेना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आत्मीयता में जाना चाहता है। So if you really wants to be intimate with God, you also need to make right with the people, make yourself right with the people, you reconcile. Don't keep things in your heart, ठीक है, which would become a war, ठीक है, which would become a war for you to come to the presence of God. आप वो बेदी में आप छोड़िए, ठीक है, leave it at the altar and go and make right, settle down first and come back, परमेश्वर कह रहा है। So परमेश्वर आपको ये अगर स्मरण करा रहा है, किसी का चेहरा आ रहा है, आप कुछ बात कर रहा है, हो सकता है आपका परिवार का अंदर में हो सकता है आपका माँ बाप के साथ हो सकता है आप पति के बीच के बात हो, ठीक है, हो सकता है आप दोस्त के साथ हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, ठीक है, आप अभी तक वो करवापन को लेकर चल रहा है। God is saying this morning clearly, reconcile and come back to me. So परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, because in reconciliation there is freedom. So when you do that, you can worship Him freely. आप वो आज़ादी के साथ परमेश्वर को आप आराधना कर सकता है, because God can set us free from all of this. परमेश्वर हमें ये सब चीज़ों से, ये सब बंधन से आज़ाद कर सकता है। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए, और हम हमारा जीवन को भी हम देखेंगे थोड़ा समय लेकर कि परमेश्वर आपको बात कर रहा है, तो इन बातों को हल्के से मत लिए। आप अगर कुछ चीज़ है जो इन सप्ताह में, ठीक है, आपको हम ये प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप लिखना भी लिख लो, कुछ बात है जो आपका जीवन इन क्षेत्र में सही करने का ज़रूरत है, कि कुछ नाम को भी लिखना ज़रूरत पड़ेगा, भी तो आप लिख सकता है अपना अपना जगह में, और उसके बाद इन सब चीज़ों को आप डील करिए ताकि परमेश्वर आपका मसीह के जीवन में आशीष दे सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका जीवित वचन के लिए प्रभु। आज फिर से एक बार इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा हमें फिर से बात किया कि प्रभु जी, क्रोध या जो हत्या जो है आपका अनुसार हमारे लिए क्या है प्रभु। हमने आपका वचन का गहराई से कुछ बात हमने सीखा है, आपने हमें जो खोल के बताया है कि आपका अनुसार ये क्या है। प्रभु जी, हमें सहायता करें हमारे जीवन में ये वचन का अनुसार चलने के लिए। हाँ परमेश्वर, अगर हमारा बीच में अगर यदि कोई है जो ये आज के दिन जैसे आपने हमें बोला मेल मिलाप करने के लिए, और हमारा क्रोध का जो प्रॉब्लम्स को, समस्याएं को सही करने के लिए प्रभु, और वो भी जल्दी
बिना देर किया हुए करने के लिए हमें जो बताया है प्रभु, हमें सहायता करे आज का दिन, ये सप्ताह, आने वाले समय में प्रभु जी जो भी बात हमें आप स्मरण किए, इन बातों को हम प्रभु सही कराने में हमें वो क्षमता दे। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य हमें भर दे प्रभु जी। हम आज़ाद से जीना चाहता है प्रभु, आपको आराधना आज़ादी से करना चाहते हैं। हर एक बात हमारा हृदय में ऐसे बात है जो आपसे आराधना करने से हमें रोक रहा है, जो कोई है जो हमें माफ़ करना चाहिए, जो कुछ बात है हमें किसी से माफ़ मांगना चाहिए, तो प्रभु हमें सहायता करें कि इस बात को हम कर पाए। पवित्र आत्मा हम सबको सहायता करे। धन्यवाद हमें वो चंगाई देने के लिए प्रभु जी, हमें बात करने के लिए सारे आदर महिमा हम तुझको देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। सो आइए कलीसिया, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। परमेश्वर हमसे निरंतर बात करते रहता है और आज परमेश्वर ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि किसी के प्रति अगर हमारे हृदय में क्रोध है तो हमें कितना ज़रूरत है कि हम उसको माफ़ करें। और अगर परमेश्वर के प्रति भी हम क्रोधित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, या परमेश्वर ने हमने जो उससे आशा किया था वो कार्य हमारे जीवन में नहीं किया है, और हम क्रोधित हैं, तो ज़रूरत है कि हम आए और परमेश्वर के समीपता में आ करके हम उस क्रोध को, हम उस जो बैर का जो भावना है हमारे अंदर, उसको हम समर्पित करें। क्योंकि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के जब करीबी पद में आए, जब हम परमेश्वर के समीपता में आए, सो हमारा हृदय उसके साथ सही हो। कितना ज़रूरी है। सो कलीसिया, ये हफ्ते अगर परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते भर कुछ लोगों को याद दिला रहा है जिसको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, तो हिचकिचाइए नहीं और जाइए और जाकर माफ़ करिए और देखिए कि आप उस आज़ादी को अपने जीवन में किस तरह से महसूस करेंगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रुचि रखता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय को परिवर्तित करते चले जाए ताकि हम उसको ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर हमसे बात करता है, इसके लिए आइए हम उसको धन्यवाद दें। सो कलीसिया, ये समय है कि हम हर्ष से अपने परमेश्वर की ओर आइए, हम अपने हाथों को खोल करके, अपने हृदय को खोल करके हम अपने परमेश्वर पिता को वो आराधना करें। ये समय है हम दान और दशवांश कलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पर आप दान दशवांश देने के लिए आपके स्क्रीन पे जो डिटेल्स आएगा, आप उसके माध्यम से दान और दशवांश दे सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, अपने अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमने जो कुछ भी सोचा है कि हम अपने परमेश्वर को अर्पण करेंगे, वो हम मन में तैयार कर लें। हमारे भाई एलेक्स है जो हमारा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Let's pray. Father, thank you, Lord Father, for this beautiful word you have blessed us, Lord Father. That our anger, Lord Father, should be checked, Lord Father, as no hatred should come upon us, Lord Father. Father, we pray as we collect our offerings, our tithes, Lord Father, bless us that we come with a reconciled heart, Lord Father. We don't come with hatred as we offer you. As your word says, Lord Father, before you offer anything to the altar, go and reconcile, Lord Father. Let our heart reconcile our hatred against our brothers or sisters or anybody, our neighbors, Lord Father. Let no hatred should come between us and you, Lord Father. As we offer our tithes and offering, Lord Father, accept our offering, Lord Father, to give you glory, to increase your kingdom, Lord Father. As we know, Lord Father, as we surrender everything that we have in a great cause to in your kingdom, Lord Father, it will multiply sevenfolds to sevenfolds, Lord Father. Thank you so much for blessing us. Thank you so much for your beautiful words, and thank you so much that you made us worthy to give an offering of worship and praises to your name, Lord Father. As we end up this beautiful service, Lord Father, bless each and every one of us as we are at home or as we are going back to our home, Lord Father. Bless this whole coming week. Bless our going out and bless our coming in, Lord Father. And everything that we desire and all the plans that we made, let your protection, let your angels be upon us, Lord Father, and protect us, Lord Father. And everything
speak right things to us, Lord Father. Let your Holy Spirit intercede right things, Lord Father. To whomever we speak, let it will be like as if you are speaking to us, Lord Father. And whatever desires and whatever plans we have, let it be done, Lord Father. Also pray for people who are in need, in sick bed, in illness, or in hospitals, Lord Father. I pray that your blessing, because you are Jehovah Rapha, the God, the healer, Lord Father. You're going to bless us, you're going to heal us, Lord Father. Bless us, Lord Father. Let it be healing over each and every body. Let your blood, mighty Jesus, cover them and fill them up, Lord Father. Thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. सो चर्च, एक बार फिर आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे हफ्ते भर में हमारा डिसाइपलिंग, पर्सनल डिसाइपलशिप होता है। और अगर अभी तक आपने अपना नाम नहीं दिया है तो आप कृपया करके हमें, जो स्क्रीन पे आपका नंबर आ रहा है, उस पे संपर्क करें। साथ ही में मंडे से वेडनेसडे तक हमारा जूम के माध्यम से प्रार्थना होता है हर रात को 7 बजे से, और जूम ही के माध्यम से हम लोग बाइबल स्टडी भी करते हैं हर थर्सडे 7 बजे से। फ्राइडेज़ को हमारा फास्टिंग प्रेयर होता है। हम लोग फ़ोन के कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से के साथ मिल करके हम लोग फास्टिंग और प्रार्थना में रहते हैं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हम लोग, और खुद के भी जो ज़रूरत है वो सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अंत के समय में हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आना न छोड़ें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करे। और जैसा कि हमने आज सुना है, परमेश्वर के वेदी में आने से पहले आइए हम एक दूसरे को माफ़ करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह।